Hello everyone, myself Abhay Raj Singh, Mechanical Engineering branch, first semester. Here I am presenting assignment on value education and my topic is happiness and a difference between temporary and continuous happiness. So here I will discuss what is happiness, types of happiness, continuous happiness, and in the continuous happiness I will discuss right understanding, relationship and trust, mental peace and satisfaction. And then temporary happiness, myths of happiness, and final conclusion. So, what is happiness? No one can exactly define what happiness is. It is such a dynamic word. हैप्पीनेस क्या है ये हम एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते. ये एक हवा की तरह है जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते. इन जनरल हैप्पीनेस इज एन इमोशनल, फिजिकल एंड मेंटल स्टेट ऑफ वेलबींग. हैप्पीनेस इज अपोजिट ऑफ सैडनेस. हम कह सकते हैं कि दुख का विपरीत ही खुशी है. Happiness is that feeling that come over you when you know life is good and you can't help but smile. Happiness हम उस स्टेट को भी कह सकते हैं जब हमारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम न हो. Happiness is being able to enjoy life with peaceful mind that is not constantly carving for more. इसका मतलब ये है कि जब आप अपने काम से सेटिस्फाई हैं तो वो स्टेट आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड कर सकती है. Happiness is understood as the positive emotion we have in regards to a pleasurable activities we take part in through our daily lives. हम रोज कोई ना कोई एक ऐसा काम करते हैं, जरूर करते हैं जो करना हमें अच्छा लगता है. तो वो सारे काम जो करना हमें अच्छा लगता है वो हमें हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हैं. हैप्पीनेस इज टू टाइप्स, कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड टेम्पररी हैप्पीनेस. कंटिन्यूअस हैप्पीनेस. We want to be happy always means we desire for continuous happiness. As a human being हम क्या चाहते हैं कि हम हमेशा खुश रहें, तो हम continuous happiness desire करते हैं. Continuous happiness is requirement of the self, not body. और कुछ पॉइंट हैं जिन्हें फॉलो करके हम continuous happiness अचीव कर सकते हैं. So the first point is right understanding. This refers to the higher order human skill that need to learn and utilize our intelligence more effectively. Right understanding का मतलब क्या है? सही सोच. जब हम सही और गलत में फर्क करना सीख लेंगे तो वो कहलाती है right understanding. It makes human beings to think what actually required to them. Right understanding हमें इस काबिल बनाता है कि हम सोच सकते हैं कि हमें क्या इम्पोर्टेंट है. इसीलिए हम कह सकते हैं कि right understanding is equal to right decision making. Right understanding enables us to make perfect balance among trust, relationship and physical facilities. Right understanding के अलावा भी ट्रस्ट, रिलेशनशिप एंड फिजिकल फैसिलिटीज भी होती हैं जिनके बीच में हमको परफेक्ट बैलेंस बनाना होता है, तभी हम हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं. If we know what is important for us to be happy and what is our need, then we will not bother on such things which we don't need. So ऐसा हम कह सकते हैं कि right understanding is that which find happiness in the state of unhappiness. And the second point is relationship and trust. This means interpersonal relationship and trust that a person build in his or her life at home, at workplace and in the society. At present time, major reason of unhappiness is lack of trust and good relationship in families. आज के समय में ये देखा गया है कि अनहैप्पीनेस का जो मेजर रीजन है वो है लैक ऑफ ट्रस्ट एंड गुड रिलेशनशिप इन फैमिलीज. इसका रिजल्ट ये है कि डिप्रेशन और लोनलीनेस इंडिविजुअल लेवल पे आज एक मेजर प्रॉब्लम बनी हुई है. वी ऑल्सो गेट हैप्पीनेस बाय मेकिंग अदर्स हैप्पी. हम दूसरों को भी खुश करके भी खुद खुश हो सकते हैं. If there is trust among family members or friends, then we can understand and share our problem, which also makes us happy. अगर हमारे फैमिली मेंबर या फिर फ्रेंड के बीच में ट्रस्ट होगा तो हम अपनी प्रॉब्लम उनको शेयर कर सकते हैं और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. तो ऐसे हम दूसरों को खुश करके भी खुद खुश हो सकते हैं. एंड थर्ड पॉइंट इज मेंटल पीस एंड सेटिस्फैक्शन. द परस्यूट ऑफ इनर पीस इज मोर देन द सर्च ऑफ हैप्पीनेस और सक्सेस. आज हैप्पीनेस सबको चाहिए, लेकिन
मेंटल पीस एंड सेटिस्फैक्शन से भी हम हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं। कैसे? अगर आप अपने काम से सेटिस्फाई हैं, आप अपने वर्क से सेटिस्फाई हैं, तो वो आपको अलग प्रकार की खुशी प्रदान करता है। मेंटल पीस और calmness can be achieved by doing yoga, exercise and balanced and disciplined daily routine. मेंटल पीस और कामनेस को हम अचीव कर सकते हैं एक बैलेंस्ड डेली रूटीन को फॉलो कर, जिसमें हम योगा एंड एक्सरसाइज को इंक्लूड कर सकते हैं। एंड टेम्पररी हैप्पीनेस, टेम्पररी हैप्पीनेस इज डिपेंडेंट ऑन करेंट सिचुएशन एंड कम्स एंड गोज विद टाइम। टेम्परेरी हैप्पीनेस क्या है? ये सिचुएशन डिपेंडेंट है, जो कि टाइम के साथ आती है और चली भी जाती है। जैसे कि एक स्टूडेंट के लिए कंप्लीटिंग होमवर्क, गेटिंग गुड मार्क्स, ये ऐसी सिचुएशन है जो उसे कुछ समय के लिए खुशी प्रदान करती हैं। दिस आर द एग्जांपल ऑफ टेम्परेरी हैप्पीनेस। मनी, थिंग्स ऑफ लग्जरी, नीड ऑफ द बॉडी मीन्स things required for our body to sustain, or we can say physical facilities provide us temporary happiness। यानी फिजिकल फैसिलिटीज हमें मेनली टेम्परेरी हैप्पीनेस प्रोवाइड करती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि टेम्परेरी हैप्पीनेस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, नॉट सेल्फ। देयर आर सम मिथ्स ऑफ हैप्पीनेस। द टाइप ऑफ थॉट बिलो आर द एग्जांपल ऑफ मिसकंसेप्शंस अबाउट द हैप्पीनेस। हैप्पीनेस को लेकर कुछ मिसकंसेप्शन होते हैं, जैसे आई विल बी हैप्पी व्हेन आई एम रिच एंड सक्सेसफुल, लैंडिंग माई ड्रीम जॉब विल मेक मी हैप्पी। लोग सोचते हैं कि अगर मेरे पास खूब सारा पैसा होगा, या फिर मैं सक्सेसफुल होऊंगा, या फिर मैं अपनी ड्रीम जॉब कर रहा हूँगा, तो मैं खुश रहूंगा। तो ये पूरी तरीके से सही नहीं है। एंड जो ओल्ड पर्सन होते हैं वो ये सोचते हैं कि द बेस्ट ईयर ऑफ माई लाइफ आर ओवर, तो मैं कभी खुश नहीं रह सकता। ये गलत है। सो फाइनली कंक्लूजन, getting rich or affording everything you want is not happiness. Accumulating physical facilities only provide us temporary happiness. And as a human being, हमारी requirement क्या है? हमारी requirement continuous happiness है, not temporary happiness. Human need is continuous happiness. Temporary happiness is just the requirement of our body.